Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let's start chapter 1, the medieval period, जिसका मतलब है मध्यकालीन समय. India has encountered several golden ages in its history, जिसका मतलब है कि भारत ने अपने इतिहास में कई सुवर्ण युगों का सामना किया है. We have already learnt about the ancient civilization, ideas, religion and people in the previous class. But the history of India did not end there. जिसका मतलब होता है कि हमने पिछली कक्षा में प्राचीन सभ्यताओं, विचारों, धर्मों और लोगों के बारे में पहले से ही जान लिया है, लेकिन भारत का इतिहास वहाँ समाप्त नहीं हुआ. The medieval period in Indian history began roughly around the 8th century CE after the fall of Gupta Empire and lasted till the 18th century CE. जिसका मतलब है कि भारत में मध्यकालीन समय गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी तक चला. The medieval period in India is further divided into the early medieval period and the later medieval period. जिसका मतलब होता है कि भारत में मध्यकालीन समय को प्रारंभिक मध्यकालीन समय और बाद के मध्यकालीन समय में विभाजित किया गया है. Okay students, now let us understand the point, the science of cartography, जिसका मतलब होता है कि नक्शा बनाने की कला का विज्ञान. Human beings have always felt the need to travel for different reasons. जिसका मतलब होता है कि मानव ने हमेशा विभिन्न कारणों से यात्रा करने की आवश्यकता महसूस की है. With the development of trade and exchange of ideas, people begin exploring the world. जिसका मतलब होता है कि व्यापार के विकास और विचारों के आदान प्रदान के साथ लोगों ने दुनिया की खोज शुरू की. However, the art of map making was hitherto unknown. जिसका मतलब है कि लेकिन फिर भी नक्शे बनाने की कला अब तक अज्ञात थी. Travelers from different parts of the world set out on exploration, during which they devised rough drawings that indicated places and directions. यह लाइन का मतलब होता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए यात्रियों ने खोज की, जिसके दौरान उन्होंने किसी न किसी चित्र को तैयार किया जो स्थानों और दिशाओं को दर्शाता था. It was a long process as different explorers from different time periods contributed to this process of charting the features of the earth. This led to the development of map making और cartography. जिसका मतलब है कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी, क्योंकि अलग अलग समय काल के अलग अलग खोजकर्ताओं ने पृथ्वी की विशेषताओं को रेखाचित्र बनाने की इस प्रक्रिया में योगदान दिया और इससे नक्शे बनाना या कार्टोग्राफी का विकास हुआ. One of the first maps developed was made by an Arab geographer Al-Adrisi in 1154 century and is very different from our current maps. जिसका मतलब होता है कि विकसित किए गए पहले नक्शों में से एक नक्शा 1154 की सेंचुरी में एक अरब भूगोलशास्त्री अल-अदरीसी द्वारा बनाया गया था और वह नक्शा हमारे वर्तमान नक्शों से बहुत अलग है. The second map in the next page is from 1507 when people understood the world and its places better. जिसका मतलब है कि दूसरा नक्शा जो अगले पेज में है, जो 1507 में बनाया गया था, तब से लोगों ने दुनिया और इसके स्थानों को बेहतर तरीके से समझा. By looking at these two maps, you will see how much the science of cartography has developed over time. जिसका मतलब होता है कि इन दोनों नक्शों को देखकर आप समझोगे कि समय के साथ नक्शे बनाने की कला का विज्ञान कितना विकसित हुआ है. When historians study ancient maps, they have to keep in mind the historical backgrounds of those places in the maps to be able to read them. जब इतिहासकार प्राचीन नक्शों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें उन जगहों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड, को ध्यान में रखना होगा जो उन्हें पढ़ने में सक्षम हो.
Okay students, now let us understand maps that are given on the page number 8 of the textbooks. And the first map indicates that a map drawn by 12th century cartographer अल-अदरीसी, जिसका मतलब होता है कि ये जो नक्शा दिया गया है वो नक्शा 12वीं सदी में अल-अदरीसी नाम के कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया था. एंड द नेक्स्ट मैप विच वॉज मेड बाय मार्टिन वेल्सी-म्यूलर्स वर्ल्ड मैप ऑफ 1507, जिसका मतलब होता है कि ये जो दुनिया का नक्शा है 1507 में मार्टिन वेल्सी-म्यूलर्स के द्वारा बनाया गया था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्स टर्मिनोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि विविध पारिभाषिक शब्द. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ बीन नोन बाय मैनी डिफरेंट नेम्स, जिसका मतलब है कि भारत के गणराज्य को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है. अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मेंशन आर्यवर्त एज द लैंड ऑफ आर्यंस एंड द भारतवर्षा इन द पुराणस, जिसका मतलब है कि प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों में आर्यवर्त का उल्लेख आर्यों की भूमि और पुराणों में उसका भारतवर्ष के रूप में मिलता है. द नेम इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड इंडस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड सिंधी, जिसका मतलब होता है कि भारत का नाम इंडस शब्द से उत्पन्न हुआ है जो फारसी शब्द सिंधी से उत्पन्न हुआ है. द इंडस रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसका मतलब होता है कि इंडस नदी को संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है. एज वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया एंड भारत हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली टू डिस्क्राइब द कंट्री, जिसका मतलब होता है कि जैसा कि हमने भारत के संविधान को पढ़ा है, देश वर्णन करने के लिए इंडिया और भारत का परस्पर उपयोग किया गया है. द हिस्टोरिकल टर्म हिंदुस्तान सिग्निफाइज इधर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स, जिसका मतलब होता है कि ऐतिहासिक शब्द हिंदुस्तान पूरे भारतीय उपमहादेश या इसके उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को सूचित करता है. ईच ऑफ दिस नेम्स हैव बीन यूज्ड डिफरेंटली एट डिफरेंट पीरियड्स एज इंटरप्रिटेड बाय डिफरेंट रूलर्स, जिसका मतलब होता है कि इन नामों में से प्रत्येक का अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों द्वारा अनुवाद किया गया है. When Minhaj a Siraj, a Persian historian, used the term Hindustan, he used it to describe the areas of Punjab, Haryana and the lands between the rivers Ganga and Yamuna, जिसका मतलब होता है कि जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्होंने इसका इस्तेमाल पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा और यमुना नदियों के बीच की भूमि का वर्णन करने के लिए किया. द मुगल्स यूज्ड दिस टर्म टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस, जिसका मतलब होता है कि मुगलों ने इस शब्द का उपयोग जगह के भूगोल का वर्णन करने के लिए किया. सब्सिक्वेंट रूलर्स यूज द टर्म हिंदुस्तान टू रिफर टू देयर रिस्पेक्टिव रियल्म्स, जिसका मतलब होता है कि बाद के शासकों ने अपने संबंधित स्थानों का उल्लेख करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया. अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद इन ए जोग्राफिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, जिसका मतलब होता है कि अमीर खुसरो ने भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वरूप में हिंद शब्द का इस्तेमाल किया. हाउएवर ही डिड नॉट एट्रीब्यूट एनी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग टू इट, जिसका मतलब होता है कि मगर उन्होंने इसके लिए कोई राजनीतिक या राष्ट्रीय विशेषता नहीं दी.